Hello everyone, myself Sana Ilyas. Today the topic which I am going to discuss is workforce planning. What actually workforce planning is? Workforce planning is the process of analyzing, forecasting and planning the workforce supply and demand, assessing the gaps and then acquiring the target talent. What actually workforce planning steps are? From first of all, defining the business objectives, what we want to achieve, what are the objectives of an organization, what is the current workforce situation, how many people are working at what place in an organization, and then as establishing the future requirements, the future workforce required for your organization, and then establishing the plan to hire the people for your organization. Now, in order to understand workforce planning, we should remember five main things. That is, the right people with right skills in right time at right in right place at right time for the right cost. Who are the right people for an organization? For understanding this, we should know KSA, the people with the right knowledge, skills, and attributes. Those attributes, that knowledge, and those skills which are going to be beneficial to your organization in today and in future. Not only providing the technical work or technical benefit to your organization, but adding value to your organization. Adding value by personal development, people development, and whether the person is culturally fit to your organization, having ethnicity with your organization today and in future. With the right skills, a person with the right skills. Right skills is the balance between the behavioral competencies and functional competencies. So, the right skills are the one that are not like you are hiring someone and you are expecting them to have 100% the skills that you want. Maybe they do have, but if they don't have, they have 80% of the skills you want and 20% are lacking. Then the right skill is the one that you can develop the 20% skills in that person by having that person in your organization, by having on-job coachings, learning and development plannings, succession plannings, and different plans. The talent gap is the one that you know the talent you know and the requirement you want. The gap between is filled up by having on job coachings and the trainings. These are the right skills. Right skills for in the right place. What is the right place? Right place is not the title or the department. Right place is actually the place where you own, where you take the decisions, and where you lead the change. You analyze the gaps, you analyze the problems, and provide the solutions to those problems. Whether you are working, that person is working in field or in factory, they are working according to their competencies in their own fields. Then, at the right time. What is the right time of workforce planning? Right time is the one where you have to analyze that who are the people in your organization that are performing, that are non-performing, and that are excelling in their performance. Like if a person is excelling and you are not providing them with the benefits they deserve, so at that दे विल लाइक अगर कोई है और जो एक्सेलिंग परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसको इतने बेनिफिट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिल रहे जितने वो डिज़र्व करता है, और अगर उसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो चले जाएंगे वहाँ से. तो इस वजह से इन ऑर्डर टू रिटेन द टैलेंट यू मस्ट हैव द प्लान्स फॉर इट, लाइक प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स to that excelling performing. If someone is not performing, then dealing it with that
one, and the performing are provided with some extra tasks and some KPIs extra, so that check their performance whether they can move to excelling or not. This performing, excelling, and non-performing is based upon you are analyzing them on the basis of their age, their willingness to do the work, their education, and everything they are doing in your organization, and their competencies are the main thing. Then, for the right cost, right cost is not the thing that if you are provided with the budget of hiring someone at 2 lakh and you are hiring at 1 lakh 50,000, this is not the right cost. If someone is capable of doing an excelling work in your organization while you are hiring and in future, then आप एक्स्ट्रा 50,000 भी उसे प्रोवाइड करके बजट से ऊपर भी आप उसे हायर कर सकते हैं. दैट इज़ द राइट कॉस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ नॉट द राइट कॉस्ट फॉर सेविंग, लाइक बाय सेविंग मनी यू आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. बट अगर अगर आप जो है वो कम कॉस्ट में किसी को हायर करते हैं, इन द लॉन्ग रन दैट इज़ गोइंग टू हार्म योर ऑर्गेनाइजेशन. इट विल कॉस्ट यू in future, not it is like the benefit to you in today, but will be costly and harmful for your organization in future. Lastly, the workforce planning benefits. The benefits of workforce planning are actually that by doing workforce planning, you know what are the workforce discrepancies in your organization. You plan for the future, for what are your requirements. You enhance the recruitment processes of your organization that are beneficial for you, aligning yourself with the HR processes, improving the KPIs, key performance indicators in your organization, implementing the retention strategy which will be the beneficial for your organization, and finding the talent gaps. By finding the talent gaps and then providing and fulfilling them by retention strategy, and by providing them learning and development plannings, trainings, on job coachings, different strategies, the succession plannings is provided, and workforce planning is done. Workforce planning is well understood by ISO 30409. They work, they give different guidelines, different points whether to have workforce planning, whether it is complying in your organization or not complying, and then according to that you can easily workforce plan for your organization. Thank you. That's all from my side. Assalamualaikum. So I am Uruj Ansar and I am here to present you 9-box performance potential metrics. Through 9-box potential metrics, it makes workforce planning easier, through which you will gain clarity on your employees' strength and can determine which employees have the potential for leadership or senior roles within the company. Let's moving forward. Okay, as you can see, vertical, which shows the leadership potential of an employee, whereas horizontal, it shows the performance of an employee. Either the performance is poor, good, or an outstanding. So we'll scale it out through 9 boxes. Moving forward, 1A, which shows the employees having all the time poor performance but having a high potential. When B shows the good performance with the high potential, but in 1C, the outstanding employee. Their performance was throughout outstanding and having the high potential. So there is a chance for giving them a new role and become he or she will be able to become a successor. Two-way, which employs having a poor performance but having a moderate potential in it. 2B, employees having good performance with moderate potential. And 2C shows the outstanding performance with moderate potential. 3A,
employee having poor performance with the limited potential, so we need to more focus, either he or she be able to continue with us or not, so there's a time to have a look on it. 3b, employee having a good performance with a limited potential. Some of the times uh, we are facing different problems. Some of the times we having a training issues, so employee damn need trainings to perform well. That's why he's losing his potential some of the times. And 3C is outstanding performance with the limited potential. So we need to identify uh, whether to invest in our employee. But the 1C is the outstanding and 1B is also outstanding for us. So they both are able to give them a chance for a new role by providing them trainings, and it also helps us that which employees become the successor and who she'll be able to retain with us. Continue. Assalamualaikum. My name is Kabir, and I'm doing MBA in supply chain from IOPM and currently working in Systems Limited as a senior supply chain consultant. So, in the managing human capital course taught by Ranjeet Kumar, तो इसमें हमने काफ़ी सारी डिफरेंट ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड एचआर से रिलेटेड काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स इसमें हमने पढ़े और समझे। तो इसके अंदर से जो मेरा भी टॉपिक है वो है सक्सेशन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो पहले सक्सेशन प्लानिंग की हम बात करते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग है क्या, और कंपनी सक्सेशन प्लानिंग से लेकर अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे इवॉल्व कर रही होती है। तो सबसे पहले सक्सेशन प्लानिंग की तरफ चलते हैं। तो सक्सेशन प्लानिंग जो है ये एक इंतहाई क्रूशल पार्ट होता है टैलेंट मैनेजमेंट का, एंड वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। तो जब हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं और तो हम लोग करते ये हैं कि जो एचआर है ऑर्गेनाइजेशंस करती ये हैं कि हम सक्सेसर्स ढूंढ रहे होते हैं अपने की लीडरशिप्स का, ठीक है, जिनमें पोटेंशियल होता है और वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ऐसे सक्सेसर्स को जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जूम कर रहे होते हैं उन सर्टेन रोल्स के लिए, ठीक है। नॉर्मली ये रोल्स हमारे लीडर्स वाले रोल होते हैं या लीडरशिप पोजीशन जो जिन्हें आप हमें सीईओ का रोल कह लें, सीएफओ का रोल कह लें, सीटीओ का रोल कह लें, या इसके अलावा कोई दूसरे सीनियर लेवल एग्जेक्टिव जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में रोल होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सीईओ है या एक सीएफओ है या एक हेड ऑफ प्लांट है, वो रिटायरमेंट के करीब है, ठीक है, या उसके चांसेस हैं कि ही माइट मूव टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारी कंपनी के ऑपरेशंस जो है एक बंदे के जाने से डिस्टर्ब ना हो। तो इन ये करने का मकसद ये होता है। अब सक्सेशन प्लानिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। अच्छा, उन स्टेप्स में ये कि यार हमें सबसे पहले वो की पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी होती हैं जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं और बहुत क्रूशियल होती हैं कि अगर उनके जाने से हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। इनमें जैसे हमारे पास पोजीशन होती है सीईओ की, होती है सीएफओ की, होती है सीटीओ की पोजीशन होती है। तो ये पोजीशंस जो है ये हमारी बड़ी क्रूशियल होती है, ठीक है। अच्छा, अगेन जो सक्सेशन प्लानिंग का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि यार इट इज़ यूज्ड टू इंश्योर दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के पास, हमारे पास एक वो पाइपलाइन के अंदर वो टैलेंट मौजूद है उस इंडिविजुअल का, कि वो जब हमारे पास ये जो करंट लीडर्स हैं ये अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उनको टेकअप करने के लिए ये रेडी है। ऑब्वियसली इसके फिर हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी हैं सक्सेशन प्लानिंग के, और जिसके अंदर हमारे पास ये सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारी एक जो कंटिन्यूटी होती है वो मेंटेन रहती है। हमारे ऑपरेशंस जो है जिस तरह पहले चल रहे होते हैं वो
उसी तरह क्विकली और स्मूथली चलते रहे। अगर इवन जो हमारा जो पुराना बंदा था वो डिपार्ट हो गया, लाइक ही हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, या वो रिटायर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि हेल्प करती है सक्सेशन प्लानिंग, ये कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है वो उसको प्रिजर्व कर रही होती है, ठीक है। आप बाहर से कोई बंदा लेके नहीं आ रहे, आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में ही टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसी कॉर्पोरेट कल्चर का रहते हुए ही आप उसको टैलेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास एक इसमें ये होता है कि जब आप सक्सेशन प्लानिंग कर रहे होते हैं उसमें एक और स्टेप ये होता है। एक पहला स्टेप जिस तरह हमने अभी लास्ट डिस्कस किया कि की पोजीशंस हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। सेकंड फिर हमें ये होता है कि यार कॉम्पिटेंसीज भी हम डिफाइन करें कि यार ये कौन सी कॉम्पिटेंसी के अंदर हमारे पास स्किल्स की ज़रूरत है, और इनमें जो है सक्सेशन हमें देनी चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर आप ये कह लें कि हमारी कुछ टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं, और कुछ हमारी सॉफ्ट स्किल्स हो जाती हैं, जैसे लीडरशिप हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। तो इस तरह की भी हमें वो कॉम्पिटेंसीज जो है इन पोजीशंस की आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। तो जिन पोजीशंस की अभी हमने पहले बात की, तो इनकी कॉम्पिटेंसीज भी हमें डिफाइन करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि टेक्निकल स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, और लीडरशिप स्किल्स। इसके अलावा जो फिर तीसरा स्टेप मैं जो समझता हूँ वो ये कि हमें सक्सेसर्स जो आप समझते हैं कि यार इन लोगों में पोटेंशियल है सक्सेसर बनने का, कि यार ही इज नेक्स्ट टू द सीईओ, नेक्स्ट टू सीएफओ और सीटीओ और सीआईओ व्हाटसोएवर। तो उसके लिए हमें जो पोटेंशियल सक्सेसर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कौन से लोग जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमें कौन सी स्किल्स, कौन सी किस एम्प्लॉय के अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, कौन सी स्किल्स हैं जो ये मीट कर सकता है फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल्स। इसी के साथ फिर हम जो है सक्सेशन प्लान हम बना रहे होते हैं कि यार एक जो वंस यू कैन से कि वंस पोटेंशियल सक्सेसर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है दे कैन बिगिन डेवलपिंग सक्सेशन प्लान्स फॉर ईच की पोजीशंस। फॉर एग्जांपल दिस कैन इंक्लूड डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच सक्सेसर। ट्रेनिंग्स एक बहुत क्रूशल पार्ट होता है जिसके अंदर हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, इसके अलावा और दूसरी ट्रेनिंग भी होती हैं, और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, वन टू वन इंटरव्यूज फॉर दैट पोजीशन। तो इस तरह की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फिर इसी के साथ जो एचआर, जब आप सक्सेशन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी आइडेंटिफाई, ऑब्वियसली वो मॉनिटर करना ज़रूरी है कि जब आप उस सक्सेशन प्लानिंग का पार्ट बनने, उस सक्सेसर आप बनने जा रहे हैं अगर सीएफओ का या सीईओ का, तो आपकी अ, जो प्रोग्रेस है वो भी, उसकी भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि उसकी कॉम्पिटेंसीज और उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं नहीं हो रही हैं, और वो डेली बेसिस पे रिव्यू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नॉट डेली, बट इट शुड बी मॉनिटर्ड। इसी के साथ ऑब्वियसली जब आपकी ये ट्रेनिंग्स चल रही हैं, आपकी ये पूरी सक्सेशन का ये पूरा पीरियड चला है, फिर उसके बाद जब आपके पास आता है एग्जीक्यूशन वाला पीरियड, कि जब फॉर एग्जांपल दैट की लीडर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो जाता है, और ही हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि ये जो इन्होंने सक्सेशन प्लान बनाया होता है उस सक्सेसर को प्रमोट कर देते हैं जो वैकेंट पोजीशन हुई भी होती है, ठीक है। जो वैकेंट पोजीशन हुई भी होती है उसको आप उस पर जो सक्सेसर है उसको प्रमोट कर देते हैं, और इसी से ही ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर रही होती है कि दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस एंड अवॉइड डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस एक्टिविटीज। इसी के साथ मैं एक अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जहाँ पे मैंने एक सक्सेशन प्लानिंग होती हुई देखी। वी सॉ दैट सीएफओ इज वाज नियर टू हिज रिटायरमेंट। उनके मेरे ख्याल से साल 2 साल बाकी थे, तो जो वहाँ पे हेड ऑफ फाइनेंस थे, ही वाज प्रमोटेड टू डेप्यूटी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और उन्होंने
अराउंड 2 years CFO के साथ बड़ा क्लोजली काम किया, उनकी ट्रेनिंग्स हुई, लीडरशिप ट्रेनिंग्स हुई, और वही चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस की और जो हमने इससे पहले भी जो समझी भी है, तो वो सारी वही चीज़ें थी जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस की गई. देन व्हेन ही come on to his retirement, that deputy CFO was promoted to CFO, और जो ऑपरेशंस थे उनमें कोई ऐसी डिस्ट्रप्शंस नहीं आई और वो कंटिन्यूटी के साथ चलते ही रहे. And now, so this was all from the succession planning. Now I will move on to the performance management. के performance management क्या होती है, performance management में हम क्या कर रहे होते हैं. Basically performance management आपका वो process है जिसके अंदर आप अपने goal set कर रहे होते हैं और employees की performance को evaluate कर रहे होते हैं. ठीक है. इसी के साथ मतलब इन शॉर्ट ये है कि द गोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टू हेल्प एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द ईयर, और अपने जो गोल्स हैं उनके साल के केपीआईज होती हैं वो अपनी मेंटेन करें, उनको अचीव करें. और क्योंकि बिकॉज आपकी जब परफॉर्मेंस होती है ओनली देन यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में. वन इज सेटिंग गोल्स. इसके अंदर हम अपने जो भी सेट अपने जो है स्पेसिफिक टारगेट्स को जो है हम सेट कर रहे होते हैं, जिसमें ये कह लें कि व्हाट आई हैव टू डू दिस ईयर. फॉर एग्जांपल मैं अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में वी यूज टू हैव द सक्सेस फैक्टर, और उसके अंदर हम अपने पूरे गोल्स डाल रहे होते थे. उन गोल्स के अगेंस्ट जो है हम अपनी केपीआईज लिख रहे होते थे. फॉर एग्जांपल मेरा अगर एक गोल है कि मैं पेपरलेस एनवायरनमेंट पे जाऊं, तो अब पेपरलेस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट मेरी मल्टीपल केपीआईज होंगी, तो वो हम लोग मेंटेन कर रहे होते थे. देयर वर सेवरल गोल जो हमें साल के एंड पे मीट करने होते थे, और फिर उसकी बेसिस पर हमारी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती. इसी के अगेंस्ट जब हम गोल सेट कर रहे होते थे, फिर हम अपने फीडबैक्स इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि यार कि एम्प्लॉय जो है अपना वो फीडबैक उसके अंदर वो कर रहा होता है, और फिर उसी के साथ जो उसका लाइन मैनेजर, फीडबैक से कहने का मतलब है कि वो अपने कमेंट्स उसमें लिख रहा होता है कि व्हाट ही हैज डन एंड और व्हाट आई हैव डन. तो उसके अगेंस्ट फिर हमारा जो लाइन मैनेजर होता है वो हमें फीडबैक दे रहा होता है कि व्हाट ही हैज सीन इन दिस पीरियड, के आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है. फिर उसके अगेंस्ट आपकी कोचिंग, आपकी अगर कोचिंग की ज़रूरत होती है या डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर ये होता है कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कोचिंग आप करा रहे होते हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं डेवलपमेंट की, कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें. आफ्टर देन हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक चीज़ होती है कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, और जिसके अंदर हम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में क्वार्टरली भी हो रही होती हैं कुछ, ये कह लें कि 6 मंथ्स बाद हो रही होती हैं. तो इसके और ईयरली असेसमेंट जो है ये हो रही होती हैं कि वो अभी तक उसने कितने टारगेट मीट मीट कर लिए हैं, कितनी केपीआईज के ऊपर वो आ गया है. फिर इसी के अगेंस्ट आपके पास जो है आपको रिवॉर्ड मिलता है और रिकग्निशन मिलती है, प्रमोशन मिलते हैं, जो भी आपकी सारी जितनी भी ये चीज़ें होती हैं कि आपके प्रमोशन हो गए, आपके अप्रेजल्स हो गए, ये आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ये वाली चीज़ें फॉल कर होती हैं. अच्छा, इसी के अंदर आपके कुछ बेनिफिट्स हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. ठीक है. तो इसी के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प कर रहा होता है कि तुम लाइक डिफरेंट सेटिंग गोल्स अकॉर्डिंगली, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है. और इसी के साथ जब आप अपने गोल सेट कर रहे होते हैं, तो वो गोल्स जो है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, फॉर ईयर होते हैं, और उसी के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसी को इंक्रीज करने के लिए जो है आप वो कर रहे होते हैं. इसी में फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है फीडबैक की, कि आप उन फीडबैक्स के अगेंस्ट जो है आप अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, कि जो आपको फीडबैक मिल रहा होता है. और फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हो रही होती है, जिस तरह मैंने पहले बताया, ईयरली, हाफ ईयरली, व्हाट्सएवर, उसमें इनकी सारी चीज़ें उसमें हो रही होती हैं.
इन दी एंड अगर मैं इसका एक वो समराइज करूँ तो वो ये कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो आप ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर आप उसको हेल्प कर सकते हैं कि आपकी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रही होती है, उसकी सक्सेस पे डिपेंड कर रही होती है। आप अपने गोल्स और टारगेट अपनी केपीआईज इसमें सेट कर रहे होते हैं। So that was all from my side. Thank you very much. Signing off. Allah Hafiz. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Maaz Ahmed, and today I will be explaining what succession planning is. So let's begin. Imagine you are a coach of a sports team and you want to make sure that your team stays competitive even if some of your star players retire or leave the team. What do? You start planning for the successors, of course. Succession planning is HR is kind of like being the coach of a sports team. It's all about making sure that you have the right players in the right positions so that your team can keep winning. Even if some players leave, instead of players, we are talking about employees here in terms of HR. So let's say you are the HR manager of a company and you have some really talented employees who are doing great work, but you know that someday they might leave the company, whether it's for retirement, whether it's for the new job or something else. You don't want your company to suffer just because some key employees leave, so you start planning for their successors. You identify the key positions within the company, like the star players on the sports team, and you start looking for employees who have the potential to fill those positions in the future. You might even start giving those employees some special training and development opportunities to make sure that they are ready when the time comes. By doing all this, you are making sure that your company stays competitive even if some key employees leave. You are like the coach of a sports team actually. So that's why you are doing all this, and you are doing you are planning for the future and making sure you have the right players in the right positions to win. And every organizations love winning. So here's the definition of the succession planning. It is a process of identifying and developing employees within an organization who have the potential to fill the key leadership positions in the future. And the primary objective of the succession planning is to ensure the business continuity. It helps the organization to maintain a smooth operation even when a key employee leaves the organization. There are some more benefits which we will get from by doing after doing succession planning. The first is the business continuity. Succession planning ensures that the organization has a pool of employees who are ready to step into the key positions in case of any unforeseen events, such as retirement, resignation of key personnel. This helps the organization maintain the continuity in that operation and reduce the risk of business disruption when the succession planning occurs in that organization. So the next is employee development. Succession planning provides employees with a clear career path, which can help to boost morale, increase motivation, and improve retention. By identifying potential successors, organizations can offer targeted training and development opportunities to help the employees to gain the skills and experiences necessary to move up in the organization. So the next is reduced retirement costs. So, sorry, recruitment costs. Succession planning reduces the need for external recruitment, as succession planning is the training of the existing employees of the organization. So, as I mentioned earlier, that the organization has the pool of the internal candidates who are trained by the succession planning and are ready to fill the key positions. This helps reduce the recruitment costs as well in terms of external recruitment, as the risk of hiring external candidates who may not be good for the fit, may not fit in the organization as they are external. And the next is the better succession decisions. Succession planning allows organizations to make better decisions about who will fill the key position by identifying the potential successors and providing them with training and development opportunities.
organizations can ensure that they have a better understanding of their employees' strengths and their weaknesses, which can help to inform succession decisions. And the last one is the improved organizational performance. Succession planning can help to improve organizational performance by ensuring that the key positions are filled with the right people at the right time. So this can improve the organization's performance. Organization can ensure that they have the talent they need and to meet their strategic goals. So the succession planning is an essential process that offers a wide range of benefits to both organizations and the employees. By investing in succession planning, organization can ensure the business continuity, develop their employees, reduce recruitment costs, and make better decisions and improve organizational performance as well. So this is the process of the succession planning. The succession planning process it involves some key steps that organization must follow to ensure that they have a pool of potential successors for their key positions. And here are the steps. The first one is identify key positions. This is the very first step. The first step in the succession planning process. It is to identify the key positions within the organization. These are the positions that are critical to the organization's success, and these are actually the critical positions of the organization, and that would cause significant impact even if left unfilled. So the organization must identify those positions, and the next is identify the critical skills. Once the key positions have been identified, the next step is to identify the critical skills required for each position. For the positions we identified earlier, this involves analyzing the job requirements and identifying the skills, knowledge, and experience that are necessary to perform the job effectively. The next step is to assess the potential successors for each key position. Actually, this involves identifying employees who have the potential to fill the position and assessing their skills, knowledge, and experience. This can be done through performance appraisals, skills assessments, and other methods. So the next step is develop the succession plans. Once potential successors have been identified and assessed, the next step is to develop succession plans for each key position. This involves creating a plan to develop the skills, knowledge, and experience of the potential successors, as well as a succession plan for the transitioning the position to the successor when the time comes. And the last step is to monitor and evaluate. The final step in the succession planning process is to monitor and evaluate the effectiveness of the succession plan. This involves the tracking of the progress of the potential successors, assessing their development, and making adjustment to the plans as needed. So this is the process of succession planning. So Bismillahirrahmanirrahim. I am Aisha Farooq and I am here to tell you about ADKAR model. बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एडकार मॉडल. जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज ला रहे हों या फिर हम दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो रही हों तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हम कोई नया सिस्टम ला रहे हों तो कुछ चेंज आएगा. तो उस चेंज को अचीव करने के लिए हमारे पास 5 स्टेजेस होते हैं जिसको हम एडकार मॉडल बोलते हैं. जिससे ए से आता है हमारा अवेयरनेस, डी से आता है डिज़ायर, के से आता है नॉलेज और ए से आता है एबिलिटी और आर से आता है रीइंफोर्समेंट. उससे पहले कि एडकार मॉडल को और डिटेल में समझें हम, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टेट्स ऑफ चेंज मतलब चेंज लाने के लिए कि कितनी स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले होता है करंट, दूसरा होता है ट्रांजिशन और तीसरा होता है फ्यूचर. करंट में हम जो हमारा करंट सिनेरियो है कि आज मतलब आज की डेट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम हो रहा है तो वो हमारा करंट स्टेट होगा. ट्रांजिशन जो होता है कि हम अपने करंट स्टेट से किस तरह से फ्यूचर में मूव करेंगे तो वो हमारा ट्रांजिशन पीरियड होगा कि हम किस तरह से हमने अपने आप को चेंज किया. और फ्यूचर में कि हम उस चेंज को किस तरह से सस्टेन करते हैं
तो वो हमारा स्टेट्स ऑफ मतलब वो हमारा फ्यूचर में आ जाएगा। ये 3 स्टेट्स होती हैं चेंजेस की। अब मैं बताना चाहूँगी कि एडकार मॉडल में बेसिकली ए से जो हमारा अवेयरनेस होता है वो मतलब वो है क्या। अवेयरनेस होता है कि नीड ऑफ द चेंज, यानी कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है चेंज की, और हम चेंज क्यों लाना चाह रहे हैं और क्या रिस्क होंगे इस चेंज को लाने के लिए। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे SSDC जो है वो मैनुअली अपना सारा काम करती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि वो डिजिटाइज करें अपने प्रोग्राम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो उन्होंने ये एडकार मॉडल अप्लाई किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और पहले उन्होंने अवेयरनेस डेवलप की अपने एम्प्लॉयज़ में कि वो क्यों चेंज लाना चाह रहे हैं, क्या फ़वाइद होंगे इस चेंज के, और ये चेंज है क्या। अवेयरनेस बेसिकली ये होता है कि चेंज है क्या और नेचर क्या है चेंज का। उसके बाद हमारा आता है डी फॉर डिज़ायर, यानी कि टू सपोर्ट द चेंज, यानी कि हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें कि वो इस चेंज को एब्जॉर्ब करें और इस चेंज के साथ पैरेलली मूव करें। और इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नॉलेज में ये होता है कि इस चेंज को लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या नॉलेज की, किस तरह की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी कि वो मतलब हम किस तरह से इस चेंज को एक्वायर कर सकें। वो होता है नॉलेज पे, मतलब किस तरह से हम चेंज डेवलप कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है एबिलिटी में आता है कि हम जो ये न्यू स्किल या न्यू चेंज ला रहे हैं वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी हमारी जो भी बैरियर्स हैं वो हम किस तरह से उसको हटाएंगे, मतलब किस तरह से इनको ख़त्म करके हम उस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा आर फॉर रीइंफोर्समेंट बेसिकली होता है कि किस तरह से ये चेंज सस्टेन करेगा। जिस तरह से मैंने वो 3 स्टेट्स की बात की थी, करंट, ट्रांजिशन और फ्यूचर की। करंट में हमारा बेसिकली आ जाएगा अवेयरनेस और डिज़ायर के व्हाट इज़ द मतलब क्या चेंज हम लाना चाह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी किस करंट सिनेरियो में है और हम क्या चेंज लाना चाह रहे हैं, तो वो हमारा आ जाएगा करंट में। उसके बाद ट्रांजिशन में हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, नॉलेज और एबिलिटी, यानी कि हमें क्या स्किल्स, क्या नॉलेज और किन बैरियर्स को हमें पार करके वो चेंज लाना है, तो वो हमारा ट्रांजिशन में आ जाएगा। और फिर हमारा आता है फ्यूचर, जिसमें हमारा रीइंफोर्समेंट आता है, जो कि हम इस चेंज को किस तरह से सस्टेन करेंगे। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ एडकार मॉडल, कि अगर ये एडकार मॉडल हम ना यूज़ करें तो हमारी किस तरह से मतलब क्या चीज़ें हम वो कर सकेंगे, मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर हम अवेयरनेस और डिज़ायर नहीं करेंगे तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट, मतलब ज़्यादा रेजिस्ट हो जाएंगे, एम्प्लॉय लोअर प्रोडक्टिविटी होगी, एम्प्लॉयज़ को नॉलेज नहीं हो, मतलब अवेयरनेस नहीं होगी कि क्या चेंज लाया जा रहा है, तो ये एक हमें देखने को मिलेगा और डिलेज आएंगे वर्क में। उसके बाद नॉलेज और एबिलिटी अगर नहीं होगी तो जो भी सॉफ्टवेयर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसका गलत यूजेज होगा, और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। और अगर रीइंफोर्समेंट नहीं करेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो वापस उसी अपने पुराने तरीके पे चले जाएंगे, और जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। बेसिकली जो एडकार गैप मॉडल है, अगर हम देखें कि अगर किसी एम्प्लॉय में रीइंफोर्समेंट नहीं है, अगर अवेयरनेस नहीं है, तो वो होगा कन्फ्यूजन, यानी कि उसको वो सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा या वो चेंज वो सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो इसका करेक्टिव मेजर ये होगा कि हम उसको ट्रेनिंग करें, उसको जो वर्किंग आवर्स में उसकी ट्रेनिंग करवाएं, ताकि उसको सही से अवेयरनेस हो सके उस सॉफ्टवेयर की या उस चेंज की। उसके बाद आता है हमारा डिज़ायर, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो रेजिस्ट है बहुत ज़्यादा, यानी कि वो चेंज एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता, वो अपने पुराने ही सॉफ्टवेयर में या पुराने ही तरीके से ही मूव करना चाह रहा है। तो वो ऐसा एम्प्लॉय जो है ना वो ट्रेनिंग से सीखेगा ना, तो ऐसे एम्प्लॉय का यही सॉल्यूशन होता है कि उसको, क्योंकि वो डेंजरस एम्प्लॉय होगा तो उसको टर्मिनेट कर दें।
तीसरा, अगर नॉलेज नहीं होगी तो फियर और एंजाइटी है उसके अंदर, यानी कि वो सही से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका सोल्यूशन ये है कि उसको मॉडरेट काम दिया जाए ताकि जब तक वो एब्जॉर्ब ना कर ले उस चेंज को। उसके बाद एबिलिटी, यानी उसके अंदर पोटेंशियल, फ्रस्ट्रेटेड है वो, पोटेंशियल नहीं है उसको उस चेंज को एब्जॉर्ब करने का। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट, यानी कि बैक स्लाइडिंग, यानी कि अगर वो एम्प्लॉय जो है रीइंफोर्समेंट नहीं है, यानी कि सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो वो Hello everyone, I'm Priya Kumari and today I will explain about the appraisal methods and errors. Basically, this is HR topic. As in being HR professional, I'll discuss what are the errors and what are the methods. So let's start. First of all, we will explain the traditional method. I'm going to explain about traditional and modern both, but starting में हम करेंगे traditional methods पे कुछ बात. तो let's continue. Okay, so here I am going for. Okay, so let's start with traditional methods. What are traditional methods here? We are going to explain. Okay, so हम बात करते हैं traditional methods की, जिसमें ranking methods, grading method, peer comparison, force distribution methods and checklist method. आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? So starting from ranking method, क्या रैंकिंग सिस्टम होता है? अगर हम बात करते हैं रैंकिंग मेथड की, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि जब हम स्कूल लाइफ से होके आते हैं तो वी नो अबाउट द रैंक्स, वी नो अबाउट लाइक कि किस रैंक पे किस स्टूडेंट को, लाइक अगर कोई 90% लेता है तो हम उसको ए ग्रेड या फिर 90 प्लस जाता है तो ए प्लस की रेटिंग या फिर रैंकिंग करते हैं। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी ये चीज़ होती है। इसमें एम्प्लॉय या फिर अप्रेजर जो होता है, जो अप्रेजर होता है वो बेसिकली एम्प्लॉय को रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। बेसिकली दिस ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्मल सिस्टमेटिक मेथड। ये बहुत पुराना मेथड है, लेकिन कुछ कंपनीज स्टिल फॉलोइंग दीज ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसमें हम एम्प्लॉयज को रैंकिंग के फॉर्म में हम इनको अप्रेजल या फिर उनको परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं, ठीक है? इसमें एक चीज़ ये होती है कि आप रैंकिंग करते वक्त इट विल नॉट टेल यू द एक्यूरेट रिजल्ट्स, क्योंकि समहाउ जब हम रैंकिंग करते हैं तो वो परसेंटेज के फॉर्म में हम एम्प्लॉय को ज़्यादा इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? सो ये हमारा रैंकिंग मेथड है। एंड सेकेंड वन अगर हम बात करें तो वो है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। नाम से सबको पता लग रहा है कि बेसिकली पेयर कंपैरिजन मेथड होता क्या है। सो आई होप इसको आप अच्छा सा समझेंगे, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ब्लॉग कमेंट कर सकते हैं, और यू विल सरप्राइज माय चैनल। सो पेयर कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, टू एम्प्लॉइज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली हम कंपेयर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन हम उनकी इवैल्यूएशन करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है, देयर आर 5 एम्प्लॉइज ABCDNE। हमने इन एम्प्लॉयज़ को इनके लाइक हमने ए को हमने बी के साथ या ए को सी के साथ हम जब कंपेयर करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं फॉर मेकिंग डिसीजन फॉर अप्रेजल, यू नो, तो इसमें हम ये चीज़ करते हैं, जैसे हमने ए को कंपेयर किया सी के साथ या डी के साथ या ई के साथ, तो इसमें कंपैरिजन की फॉर्म में आता है। ये बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्शन क्रिएट करता है। इट्स मेथड में क्या होता है कि एम्प्लॉइज के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसके बिटवीन जो उनके जो लाइक कहने की उनके जो अपने माइंड सेट होते हैं उसमें वो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट व्हाट द ग्रेडिंग रेटिंग अप्रेजल मेथड्स, हाउ बेसिकली दिस वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। इन ग्रेडिंग रेटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैनेजर जो होता है वो न्यूमेरिकल बेसिस पे 1 to 5 की या लिक्विड स्केल 1 to 5 कह लें, 1 to 10 कह लें, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को ग्रेड करता है। जैसे हमने सपोज 10 पॉइंट्स ले लिए, हमने 10 पॉइंट्स को एम्प्लॉय को रेटिंग करना स्टार्ट किया, बेसिकली क्रिएट द क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये बहुत ही इजी होता है फिल करना, और मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी शेयर किया है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो हमने ग्रेड ए को आउटस्टैंडिंग दिया है, ग्रेड बी को अबव एवरेज और ग्रेड सी को एवरेज। तो इसी तरह हम पुअर वर्स्ट हम किसी भी एक लिक्विड स्केल में या फिर हम अपने हिसाब से अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम इनको रेट कर सकते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट वर्ड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये बहुत ही हम कह लें कि पहले यूज हुआ करता था, लेकिन स्टिल सम कंपनीज, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो इस मेथड को यूज करती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ये एक इवेल्युएशन मेथड है जिसमें लिमिटेशन आ जाती है। यहाँ पे अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो बेल कर्व में एक रेटिंग क्राइटेरिया बना हुआ है, जस्ट लाइक पुअर को 10%, 20, 40, 20, इस बेसिस, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको लिमिटेशन दी गई है, इस लिमिट के बाहर एम्प्लॉय नहीं जा सकता। तो ये फोर्सली किया जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज जो है वो नेगेटिव या फिर हम कह लें कि इसको नेगेटिव असम करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं चेकलिस्ट मेथड पे। ये मेथड इट्स लाइक इजी, बट इसमें क्या होता है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक इसमें हम क्वेश्चंस बना के एम्प्लॉयज को रेट करते हैं, बट इन येस और नो की फॉर्म में। ये बहुत ही इनएक्यूरेट कह लें, हम इसको कह लें कि ये नॉट इजी टू जज होता है, बिकॉज हम येस तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी केपीआईज को या फिर उसकी कॉम्पिटेंसीज को उस लेवल पे जज नहीं कर पा रहे हैं। तो चेकलिस्ट मेथड जो है वो भी एक पुराना मेथड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चेकलिस्ट जो है वो आपको एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, इज रेगुलर ऑन टाइम, एम्प्लॉय रेगुलर ऑन द जॉब ऑन टाइम, कोई भी क्वेश्चन कह लें उस पे येस और नो। ये बिल्कुल ही एक लिमिट हो गया, लेकिन हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो इसमें एम्प्लॉयज को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चेकलिस्ट मेथड के बाद हम नेक्स्ट वर्ड जाते हैं मॉडर्न मेथड्स। क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल के मॉडर्न मेथड्स होते हैं? तो अभी जो करंट लेवल पे कुछ न्यू मेथड्स आए हैं, मैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो फर्स्टली जो है मैं बात करूँगी 360 डिग्री फीडबैक। दिस इज वेल नोन मेथड। ठीक है, सो इसमें अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री की, तो 360 के नाम से यू विल नो अबाउट कि क्या इसमें बेसिकली होता होगा। एवरीवन नोज अबाउट दैट। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम एम्प्लॉयज को जज करते हैं, बट डिफरेंट तरीकों से, लाइक डिफरेंट जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में उनको रेट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो लाइन मैनेजर आते हैं सब ऑर्डिनेट को जज करते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट्स बनती हैं इनकी, पीयर्स हो जाते हैं, पीयर ग्रोथ, प्रोजेक्ट मैनेजर, कस्टमर्स हमारे हो गए, स्टेक होल्डर हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल। तो हम उसके बेसिस पे एम्प्लॉइज को रेट करते हैं, देन उनका डेटा हम कंपाइल करके फिर एक इवैल्यूएशन के फॉर्म पे जाते हैं। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर किसी का अपना फीडबैक होता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है यूज करने के लिए। अब हम बात करते हैं 720 रिव्यू मॉडल की। ये नया मेथड है जो अब कुछ कंपनीज इसको यूज करती हैं। बेसिकली अगर हम 360 की बात करते हैं, तो 360 की बात करते हुए हम 720 इट्स अ डबल। अगर हम एनुअली बेसिस पे बात करते हैं कि 360 डिग्री फॉलो हो रहा है, तो ये बेसिकली हम 2 टाइम्स करेंगे। तो 360 प्लस 360 720। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम कुछ डीप लेवल पे जाके एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। इसमें बेसिकली जो हमारे अपर लेवल मैनेजमेंट है वो क्या चाहते हैं। तो इस 360 में क्लाइंट, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट, पेयर्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें हम अपर लेवल जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं उनके बेसिस पे। इसमें फर्दर क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे फोकस करते हैं, इन डेप्थ हम पर्सनालिटी असेसमेंट्स करवाते हैं, उन स्किल्स गैप को हम लाइक अगर हमें किसी एम्प्लॉय को जज करना होता है तो किस हम बेसिस पे करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, वन ऑन वन फीडबैक इस पे होता है, एक्शन प्लान्स होते हैं, इनिशियल लेवल पे कोचिंग होती है। तो हम एम्प्लॉयज़ को इस लेवल पे जज करते हैं, बट इसमें ये होता है कि इजीली हम स्किल गैप्स को आइडेंटिफाई करके हम एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हैं। हम उनको फर्दर जो है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हम उनको ज़्यादा इस पे फोकस करवा सकते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है जो मेथड है वो है
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट्स रियली लाइक अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की प्रोसेस की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी जिसमें कुछ गोल्स पे बात हो रही है, कुछ डिफाइंड प्राइस ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो बेसिकली इसे साइकिल बना हुआ है पूरा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये मॉडर्न वे ऑफ इवोल्यूशन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो है फीडबैक्स भी देते हैं हम इसमें। अप्रेजर जो अप्रेजल्स होते हैं उनको ज़्यादा हम गोल्स पे, पहले क्या होता था, पहले की बात करते हैं तो पहले सिर्फ एक एम्प्लॉइज को टास्क दिए जाते थे और उनको बोला जाता था कि यू हैव टू डू, उनसे अपनी एक फीडबैक नहीं लिया जाता था कि हैव यू कैपेबिलिटी टू डू दिस टास्क। तो इसमें क्या है कि अब एक नए तरीके से एम्प्लॉइज को रेट एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस की जाती है, इवेल्यूएट की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय को बिठा के म्यूचुअली उनके जो है वो गोल अलाइनमेंट्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और एम्प्लॉय को हम इम्पोज नहीं करते हैं कि येस यू हैव टू डू। उनको उनसे भी पूछा जाता है, उनके फीडबैक लिए जाते हैं कि येस आर यू विलिंग टू डू दिस थिंग। तो बेसिकली ये एक अच्छा मेथड है और इससे एम्प्लॉय मोटिवेट फील करता है, इससे एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ उसकी अलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड असेसमेंट सेंटर की बात करें, ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। बट इसमें हम अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो असेसमेंट सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइज इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, मल्टीपल इवोल्यूशन पे, जस्ट लाइक मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। ये बेसिकली एग्जेक्टिव लेवल पे होता है, इसमें हम लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को नहीं ले सकते, एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लिए इसमें एक ग्रुप बनाते हैं। कंपनी क्या करती है, अपने जो हेडक्वार्टर्स लोकेशन पे एम्प्लॉइज को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाती है। उसमें हो सकता है कि जो एक्सपर्टीज होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज इसमें इंक्लूड होते हैं, लाइक वो अपने तरह से एम्प्लॉय को जो है वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट करते हैं, उनके केस स्टडीज में इन्वॉल्व करते हैं, उनको कॉम्पिटेंसीज बेस्ड इंटरव्यूज लेते हैं, रोल प्ले करवाते हैं। तो हर चीज़ में ये इसलिए अच्छी है बिकॉज इसमें एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल हम जो है एक्टिविटीज़ को देखते हैं और उनकी सॉफ्ट स्किल्स, उनके लीडरशिप स्किल्स, उनके फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी दोनों को जज करते हैं। लास्ट में एक डिसीजन बनता है उनके एक्सपर्टीज के कंक्लूजन पे और उस बेसिस पे परफॉर्मेंस एवेल्यूएट की जाती है। राइट नाउ अब एक लास्ट नॉट एट लीस्ट कि काउंटिंग मेथड, जो कि इसको हम बात करते हैं डिफरेंट एक्सपेक्ट से। तो ये बेसिकली सिंपल मेथड है, इज अ मेथड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज and the use of people in the organization. Basically HR का काम होता है लोगों को हायर करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जब भी बात करते हैं कोस्ट रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो कोस्ट हम अगर जब भी बात करेंगे कि बजट अलाइनमेंट की, हम उसकी एम्प्लॉय की एक पूरी कोस्ट निकालते हैं, उस बेसिस पे उसके एक्सपेंसेस, उसके कोस्ट को इवेल्युएट करते हुए उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि उस बेसिस पे हम डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द कंट्रीब्यूशन विल बी परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है रादर देन उनकी कॉस्ट क्या है, तो हम उनको देखते हैं। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। ये एचआर करता है बेसिकली अकाउंटिंग मेथड। नाउ कम टुवर्ड द बिहेवियरी एंड बार्स सिस्टम, ठीक है। बार सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो होते हैं वो इनको जज करा जाता है, डिफरेंट सिचुएशंस को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप्स डाले हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिहेवियर एंड रेटिंग सिस्टम में क्या बेसिकली प्रोसेस को फॉलो, कौन से स्टेप्स को लिया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो कलेक्ट क्रिटिकल इंसिडेंट्स, जो हम किसी भी हम अप्रेजी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं तो बेसिकली हम उनके क्रिटिकल इंसिडेंट्स को देखते हैं, देन हम आइडेंटिफाई करते हैं उनकी परफॉर्मेंस डायमेंशन को, रिक्लासिफाई करते हैं इंसिडेंट्स को, एंड देन हम स्केल वैल्यू टू द इंसिडेंट, उन इंसिडेंट को हम स्केल करते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं,
फाइनल इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, फाइनल डिसीजन पे आते हैं। तो बेसिकली बिहेवियर की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो है वो को जज करा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी इस टॉपिक का के लिए की है एरर्स की बात करते हैं। ठीक है, अप्रेजल एरर्स क्या होते हैं, किन किन बेसिस पे एरर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ मेथड्स जो एरर्स मेथड है किस बेसिस पे एरर्स होते हैं, वो रीज़न हम आज ज़्यादा डीप में आपको जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात करते हैं हेलो इफेक्ट की। whenever we talk about हेलो इफेक्ट, ये बेसिकली आपको एक माइंड में आता है कि ये किस चीज़ का इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल से इलाबोरेट करती हूँ, उसको आपको ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की। हेलो इफेक्ट में ये होता है कि जस्ट लाइक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम अपने एक स्कूल लाइफ का अगेन हम एग्जांपल लेते हैं, तो या फिर किसी भी हम एग्जामिनर की बात करते हैं, जो एग्जामिनर जो हमारे जो है असेसमेंट चेकर्स होते हैं, तो क्या करते हैं समटाइम ऐसा होता है कि इवेल्युएटर क्या करता है या एग्जामिनर क्या करता है कि वो फर्स्ट आंसर का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ के नेक्स्ट वो नहीं देखता, वो कहता है कि नीचे भी ओब्वियसली जो उसने लिखा होगा वो सही होगा। तो इस बेसिस पे वो उसके लिए क्या हो जाता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। किसी एक परफॉर्मेंस एस्पेक्ट को हम जब इवेल्युएट करते हैं किसी एक परफॉर्मेंस की बेस पे, तो उसमें एरर्स के चांसेस आ सकते हैं। हाउ, जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लाइक अगर एक एम्प्लॉय है जो लेट आ रहा है कंटिन्यूसली, तो एक मैनेजर है या फिर सुपरवाइजर है क्या करता है कि उसकी परफॉर्मेंस को उस एक एस्पेक्ट की वजह से उसको नेगेटिव रेटिंग कर देता है या फिर एक एस्पेक्ट को देखते हुए उसको जज कर देता है, तो वो बेसिकली हेलो इफेक्ट में आता है। इसी तरह नेक्स्ट इसका अपोजिट है हॉर्न इफेक्ट। ठीक है, हॉर्न इफेक्ट क्या होता है कि आप ये बेसिकली हेलो जो है वो पॉजिटिव में लिया जाता है, हॉर्न जो है वो नेगेटिव के से एक नेगेटिव के लिए उसको जज किया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस एस्पेक्ट जो होता है वो सेम होता है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एरर की, तो स्टेरियोटाइप एंड फेटल फैक्ट। बेसिकली स्टेरियोटाइप की अगर हम बात करते हैं, इसमें बायसनेस आ जाती है। रेटर जो होता है, जो अप्रेजल करता है जो जिसके एम्प्लॉयज का, तो बेसिकली अपने फेवरेटिज्म की वजह से, अपने बायसनेस की वजह से वो उन एम्प्लॉयज को कम रेटिंग दे देता है, तो इसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं, हालांकि वो एम्प्लॉय जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं वेटर इफेक्ट या फिर स्टीरियोटाइप की बात करेंगे, तो जब भी बात करेंगे तो हमारे पास फेवरेटिज्म की बात हो सकती है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लोगों को जज करा जाता है, किसी भी फैक्टर्स पे करा जा सकता है, वो डिपेंड करता है मैनेजर के। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर किसी के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि किसी के माइंड में अगर ये चीज़ आ जाती है कि लाइक एक स्टीरियोटाइप आ जाती है कि IBA एंड IOBM या नस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दैन अदर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो उनके माइंड में ये स्टीरियोटाइपिंग बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, समटाइम कुछ लोग जो होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स भी परफॉर्म करते हैं, तो उनके माइंड में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से एरर्स के चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमेसी बायस एंड रीसेंसी बायस। तो इन दो, अगर आप नेम से अगर आप इनको देखते हैं तो प्राइमेसी मीन्स प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो रिसेंसी बायस, तो रिसेंटली इफेक्ट। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, लाइक सपोज हम अप्रेजल करते हैं, मार्च में कर रहे हैं, ठीक है, या मार्च से पहले अगर सेल्स पर्सन की बात करते हैं कि सेल्स पर्सन जो है फेब में वो अपने टारगेट अचीव करता है, हालांकि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं थी, बट रिसेंटली उसने एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की है जिसकी वजह से रेटर्स को अच्छी मार्किंग दे देता है। इसमें भी एरर के चांसेस होते हैं बिकॉज वो उसको ओवरऑल जो है ईयरली बेसिस पे रेट नहीं कर रहा। प्राइमेसी की बात करें, प्राइमेसी मीन्स फर्स्ट इम्प्रेशन आ जाता है किसी भी मैनेजर का, किसी भी
सुपरवाइजर का। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है एम्प्लॉयज़ की साइड से, जो उसको लाइक रेटिंग में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे एरर्स हैं, वो आपको क्लियरली इसको समझ आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी बायस। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी बायस की जब हम बात करेंगे तो इसमें नेम से ये शो हो रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स लाइक एम्प्लॉय की हम मैनेजर की बात, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं कि वो अपने ह्यूमन नेचर की बात करेंगे कि वो ऑलवेज सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो पार्शियलिटी कह लें कि हम वो उनको एम्प्लॉयज़ को उस बेसिस पे एक सबको एवरेज मार्किंग दे देते हैं। लाइक मैनेजर की बात करें, उसके अंडर में 10 लोग हैं, 10 लोगों को वो जज कर रहा है, तो वो उस बेसिस पे सबको इक्वली या फिर एवरेज में लेके आएगा, और या फिर अगर किसी को मीन्स वो सेफ प्ले करेगा। तो इसमें ये चीज़ आ सकती है कि जो हमारे स्टार परफॉर्मर्स हैं, जो हमारे जिनकी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी है, वो नेगेटिवली इसको इम्पैक्ट ले सकते हैं, तो वो डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली सेंट्रल की बात करते हैं तो वो इसमें नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लीनियंसी बायस या सिविलिटी बायसेस। लीनियंसी बायस की हम बात करते हैं, लीनियंसी वर्ड इटसेल्फ डिफाइन क्या करता है कि बेसिकली इसमें लीनियंसी आ जाती है। लीनियंसी मीन्स मैनेजर या सुपरवाइजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जब भी रेट करता है, जब भी उसकी अप्रेजल्स करता है, तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि वो हमेशा लीनियंट होके चलता है, वो लीनियंसी बेसिस पे प्ले करता है। लाइक या तो वो चाहता है कि उसके माइंड में होता है कि शायद इनके और सुपरवाइजर या फिर सबोर्डिनेट के रिलेशन पे इफेक्ट होगा, तो इसलिए वो लीनियंसी बायस पे जाता है। या फिर ये हो सकता है कि इसमें पार्शियलिटी भी आ सकती है। तो लीनियंसी बायस की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें जो अप्रेजर करता है वो बेसिकली लीनियंट होकर अप्रेजल करता है, जबकि एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअल परफॉर्म नहीं करता, लेकिन वो उसको वो परफॉर्मेंस जो है वो रेटिंग या उसकी कॉम्पिटेंसीज पे जो है वो रेट कर देता है।